so let's start. To refresh our mind with a beautiful thought, here I would like to call Sushil for today's thought. Good morning everyone. My name is Sushil Vinayak Bobde from class 7. Today I am going to tell you today's thought. Today's thought is education is a key of success. I repeat my thought, education is a key of success. Thank you. Thank you, Sushil. Now I would like to call Vaidhi for importance of the day. Second mic don't use Zora. Good morning, everyone. My name is Vaidehi Deepak Munde. I am from grade 7. Today's importance of the day is World Handicap Day. Thank you. Now I would like to call Sriraj for a GK question. Good morning everyone. My name is Sriraj. Today I ask you some GK question. For grade first question is, which animal is the fastest animal in land? Cheetah is the correct answer. For grade second question is, how many zeros are there in 1 crore? Yes, the correct answer is 7. For grade third question is, which is the largest planet in our solar system? Yes, the correct answer is Jupiter. For grade fourth question is, which is the tallest animal in the world? Yes, the correct answer is giraffe. For grade fifth question is, which ancient Indian text is famous for its technologies on statecraft and economical policy? I repeat my question, which ancient Indian text is famous for its technologies on statecraft and economical policy? Answer, Arthashastra. For grade 6, the question is, during whose region was the 4th Buddhist council held? During whose region was the 4th Buddhist council held? Answer, Kanishka. For grade 7th question is, what is the full form of NFT? Non-fungible token. Eighth question is, in minutes how long is the tea break in Test cricket? Yes, the correct answer is 20. Thank you. Thank you, Sriraj. Now I would like to call Komal ma'am for this speech. Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning, students. Good morning, ma'am. Very good. So now in this week means for at the 1st of December, which special day do you know? At 1st of December, do you know? One is what? Don't know?
So one is at 1st of December. There is 8th day, and second was in this year Gita Jayanti was there. Do you know Gita Jayanti? Why we are celebrating Gita Jayanti? What is Gita? Do you know what is Gita? What is that? Bhagavad Gita, do you know? What is that? Bhagavad Gita is the one book for Hindu. भगवद गीता एक हिंदू धर्म का ग्रंथ है. ठीक है, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा हिंदी में समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. तो भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसका बर्थडे मनाया जाता है, जन्मदिन मनाया जाता है. यस, तो ये जन्मदिन कब होता है? मराठी मंथ के मार्गशीर्ष मंथ, पता है आपको मार्गशीर्ष मंथ, मराठी मंथ पता है ना? तो उसमें मार्गशीर्ष मंथ में एकादशी आती है. उस एकादशी का नाम होता है मोक्षदा एकादशी. तो मोक्षदा एकादशी के दिन भगवद गीता का जन्मदिन होता है. तो यही दिन क्यों है? आपने कभी सोचा है यही दिन क्यों है कि उसी दिन भगवद गीता जयंती मनाई जाती है? तो उस दिन क्या हुआ था कि अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान को एक क्वेश्चन पूछा था. तो उसका आंसर देने के लिए श्री कृष्ण भगवान जी ने उनको जो युद्ध होने वाला था, महाभारत तो पता है आपको? महाभारत पता है? किसमें हुआ था? कौन दो अपोजिट से? कौरव एंड पांडव. पांडव कितने थे? कौरव कितने थे? 100. तो अगर आपको बोला जाए कि आप 5 लोग हो और सामने 100 कौरव है तो युद्ध करने के लिए बोला जाए, अब जा सकते हैं? तो यही क्वेश्चन अर्जुन के मन में भी था कि ये 5 पांडव थे और सामने 100 कौरव थे, और 100 कौरव के साथ उसके जो गुरु थे, उसके जो ज्येष्ठ घर के लोग थे, भीष्म पितामह, ऐसे कुछ 2-4 लोग और थे कि जिससे वो ज़्यादा लगाव में रहता था अर्जुन. तो वो रहता था फिर, पर युद्ध तो करना ही था. पर अर्जुन को संभ्रम हो गया कि अब मैं इन लोगों के साथ कैसे युद्ध कर सकता हूँ. तो श्री कृष्ण भगवान जी ने उनको अपना कर्तव्य क्या है उसके बारे में समझाया. तो वही है भगवद गीता. तो इसमें भगवद गीता में 700 श्लोक है, 700 श्लोक्स है, और 18 चैप्टर्स मीन्स अध्याय है. 18 अध्याय में 700 श्लोक है. तो ये सब श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को उस दिन बताया था. तो उसी दिन को हम गीता जयंती मनाते हैं. तो ये जो महाभारत का युद्ध था वो कितने दिन चला था पता है आपको? वेरी गुड, 18 डेज चला था. नहुष नोज दैट आंसर. नाउ अब श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को ऐसा क्या बताया कि अर्जुन युद्ध के लिए रेडी हो गया? तो वही भगवद गीता में जीवन का सार बताया है कि हमें जीवन में कैसे सबके साथ बिहेव करना है. ये भगवद गीता में बताया है. मीन्स हमें कर्म भी करना है, हमें योग भी करना है, और हमें ज्ञान भी प्राप्त करना है, और ज्ञान लोगों को बांटना भी है. और जब हम कर्म करते हैं तो उसमें फल की आशा तो बिल्कुल नहीं करना है. उसमें एक श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. तो इसमें यह बताया गया है कि आप कर्म करो पर उसकी फल की आशा मत करो. तो आपको भी, आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो आप नॉलेज गेन करते जाओ. ठीक है, उसका फल तो आपको मिलेगा. अगर आपने अच्छी पढ़ाई की तो उसका फल आपको एब्सोल्युटली मिल जाएगा. उसमें और भी एक ज्ञान योग बताया है. तो आपको ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, और वो भी अच्छा ज्ञान लेना है. ठीक है, अच्छा ज्ञान लेना है, और आपका अच्छा ज्ञान जो है वो दूसरों को बांटना है. ठीक है, तो मैं अभी मेरा स्पीच था तो मैंने आपको इस बारे में बता दिया. इसके आगे अगर आपको कहाँ पे चांस मिलता है भगवद गीता सीखने का, उसको समझने का, तो गेट दैट चांस एंड लर्न दिस भगवद गीता. थैंक यू.